रग रग में भाईचारा हम सबके दौड़ाएंगे, रग रग में भाईचारा हम सबके दौड़ाएंगे, अमन शांति चैन जन जन को दिलाएंगे, अजय अमन शांति चैन जन जन को दिलाएंगे। कानून के द्वारा हम राज कानून चलाएंगे, गुंडों माफियाओं को अब दूर भगा। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean, the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than to watch it. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Whether it was a donkey who represented the Bullock, you see, or a very educated man who represented the Bullock. He simply voted for the Bullock. Well, but that's common to many party systems. But what do you mean by, in a formal sense? You mean that in a fundamental sense, Democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. what do you mean that it's based on equality, inequality, or It is based on inequality. and therefore unless you can get rid of the caste system, you don't The think social structure got to be altered. I am quite prepared to say, well, it will take some time for the social structure to be altered if you want to do it in a peaceful way. yes. You see? But then somebody must be making the effort to change the social system. But your Prime Minister and others make a lot of speeches These against the caste system. endless speeches, you know, you see, when Carlyle was presented with a set of volumes by Spencer, Yes. you see, he said, oh, this endless speaking acts in Christendom. Well, it's the same sort of one is sick of speeches. We like to have action. Well, what action do you See, want? some program, you see, some machinery by which the thing could be altered, some action. Well, but supposing it doesn't work, what alternative do you see? Well, there is no the alternative, as I think, is some kind of communism. And why do you think that would help the country more? Would it But raise the standard of living anymore? Yes, it does. How? Undoubtedly. I mean, who cares really for this election business? People want food, people want their material needs to be satisfied. If democracy, in America, yes, I agree. You see, the democracy works, and I don't think there ever would be communism in America. I've just come from that country. I was invited to give a degree, take a degree. That's because each American earns so much. Well, you can begin to do that here too. Well, how can you begin? They say we have no land. You see, our rainfall is so short. Our forests have been denuded. You see, what can we do? Well, you have. Unless you tackle these problems. But you think I don't think the present government would be able to tackle these problems. well, the communists would wipe out more people than That doesn't matter to my mind. You mean the remainder you think would be better Yeah, off? it would be better. We always do that sort of a thing, you know. But in this country, Yeah, we always do. I mean, in war, you kill people, don't you? And you are not sorry because you have killed so many people. we are Because you sorry. find it necessary because necessary to do so in order to safeguard your interest. You really feel that this system is likely to collapse. Yes, I think it will collapse. How soon? Well, pretty soon probably. My own people, very impatient. And I judge by my people, you see, and who are the lowest rung of the strata. You see, you know, Yes. if the foundation of a building begins to collapse, it is first
foreign people are untouchable beyond the war. Now, are the communists working among them? No, they are not working because they have faith in me. And I haven't said anything so far. Yes. You see? But they have been asking me. You see? What harm is there? Yes. They have been asking me. And I have to give some answers. सत्य है यही सबकी गत है जीवन मरण 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 सत्य है मुड़ी धर ना मुड़ी जीवन मरण गोड़ ना सत्य है यही सबकी गत है जीवन बस एटर का मरण सत्य है यही सबकी गत है बस एटर का एटर जीवन मरण सत्य है यही सबकी गत है जीवन मरण सत्य है यही सबकी गत है जीवन मरण सत्य है बस ना भयंकर गरीबी के लिए दोषी कौन है? इस सवाल के पीछे का असली सच और वजह धर्म पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था में छुपा हुआ है, जिसकी पड़ताल जरूरी है। धर्म और त्योहारों के नाम पर आप एक साल का डाटा उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तेजी से संसाधनों का फेरबदल होता है। लेकिन संसाधनों का ये फेरबदल धार्मिकता के नाम पर नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसलिए समाज का 90% वर्ग सदा गरीब बना रहता है और 10% वर्ग संसाधनों का मालिक बना रहता है। यही वजह है देश में गरीबों के साथ साथ अरबपतियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। धर्म के नाम पर हर साल देश के कीमती संसाधन खरबों रुपया मैन पावर कैसे बर्बाद किया जाता है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने कोई न कोई धार्मिक त्योहार जरूर होता है, लेकिन हम बात करेंगे बड़े त्योहारों की जो देश की बर्बादी के प्रमुख कारण है। इन्हीं त्योहारों में से एक है कुर्बानी का त्योहार, जिसमें धर्म के नाम पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्याएं की जाती हैं। देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। अगर 20 करोड़ लोग मिलकर बकरीद के नाम पर एक दिन में 1 करोड़ पशुओं को भी मारते हैं तो यह कितनी बड़ी बर्बादी है। होली का त्योहार ऐसा ही एक त्योहार है जिसके नाम पर करोड़ों टन लकड़ियां स्वाहा कर दी जाती हैं। होली के बाद नवरात्रि के नाम पर 9 दिनों में भंडारा, जागरण और देवी पूजा के नाम पर संसाधनों की जबरदस्त बर्बादी तो होती ही है, साथ ही नवरात्रि के बाद बची हुई करोड़ों टन पूजा सामग्री नदियों और तालाबों को बर्बाद करती हैं। फिर इन नदियों की सफाई के नाम पर देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से करोड़ों का बजट पास किया जाता है। और हैरानी की बात है कि नवरात्रि का ये त्योहार साल में 2 बार आता है। साल में लगभग 15 ऐसे बड़े त्योहार भी होते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर देश की नदियों को बर्बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा जैसे त्योहारों के बाद तो नदियों और समुद्री किनारों का बुरा हाल कर दिया जाता है। इन सब के साथ हर साल कई रथ यात्राएं भी होती हैं। हर साल होने वाले 10 दिन के दशहरे में देश का कितना श्रम और संसाधन बर्बाद होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल दिल्ली की 15 रामलीला कमेटियों का 10 दिनों का बजट 1050 करोड़ से ऊपर है। दशहरे के आखिरी दिन रावण दहन के नाम पर संसाधनों में आग लगाकर जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसे और भयानक स्तर पर दिवाली का त्योहार पहुंचा देता है। एक दिन में अरबों खरबों रुपयों को पटाखे के नाम पर आग में झोंक दिया जाता है। संसाधनों की यह भयंकर बर्बादी घोर गरीबी को जन्म देने के लिए काफी है। काल्पनिक ईश्वर और उसकी नकली किताबों की झूठी कहानियों के नाम पर एक साल में लाखों करोड़ रुपयों को बर्बाद कर दिया जाता है। इस बर्बादी में संसाधनों का जो जबरदस्त फेरबदल होता है उसके परिणाम स्वरूप समाज का शोषक वर्ग और ताकतवर होता जाता है और समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित बना रहता है। इसलिए शोषक वर्ग ऐसी
भीड़ बनी रहती है और भेड़ों की भीड़ से कभी समाज नहीं बनता, बल्कि समाज बनता है संवेदना, ज्ञान, सही और गलत की सामूहिक समझ और बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से। इनमें से कोई भी तत्व आपको भेड़ों की इस भीड़ में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि घोर गरीबी और अराजकता भरे माहौल में इंसानों की ये भेड़ की तरह जीने की आदी हो चुकी है। भेड़ों की इस भीड़ को फर्क नहीं पड़ता कि कोई भूख से मरे या कोई कुपोषण से। देश पर विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। आज के समय हमारे देश पर 32 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लदा हुआ है, जो हर साल 3 से 4 लाख करोड़ की दर से बढ़ता चला जा रहा है। इस भारी कर्ज का एक महीने का ब्याज ही 22,000 करोड़ रुपए होता है। देश पर हर साल चढ़ने वाले इस भारी कर्ज का कारण है ईमानदारी से टैक्स नहीं भरने की लोगों की प्रवृत्ति और राजनेताओं, उद्योगपतियों और धर्मगुरुओं का भ्रष्टाचार। देश को टैक्स देने में बेईमानी करने वाली जनता धर्म के प्रति कितनी ईमानदार है, इस बात का अंदाजा आपको एक साल में देश के छोटे बड़े मंदिरों, मजारों और दूसरे धर्म स्थलों पर चढ़ाए गए बेशुमार दौलत से हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक देश के छोटे बड़े 50 लाख मंदिर, धार्मिक स्थल, धार्मिक ट्रस्ट और 80,000 मजारों पर एक साल में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो देश पर लदे कुल कर्जे का दोगुना होता है। मतलब अगर एक साल के लिए ये धार्मिक बर्बादी रुक जाए तो देश का पूरा कर्जा तो साफ होगा ही, साथ ही करोड़ों बेघर, गरीब, बेसहारा लोगों की तकदीर भी सदा के लिए बदल सकती है। लेकिन जनता को धार्मिक लॉलीपॉप चुसाने वाला शोषक वर्ग कभी ऐसा होने नहीं देगा। एक उदाहरण और देखिए, सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोष बनाया था, जिसका उद्देश्य था समाज के सक्षम लोग, गरीब और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए इस कोष में दान करें। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 5 साल में लोगों ने इस कोष में केवल 1680 रुपए दिए, जबकि इस कोष के प्रचार प्रसार में ही सरकार के 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये है हमारे धार्मिक समाज की गरीबों के प्रति संवेदना। दूसरी ओर अहमदाबाद के उमिया माता के मंदिर में केवल 7 घंटे में 21 लोगों ने 5 करोड़ रुपए चढ़ावे में दान कर दिए। ये है हमारा भारतीय धार्मिक समाज, जहाँ संवेदनशीलता केवल झूठे खुदाओं और नकली भगवानों के प्रति ही है। इंसानियत, प्रकृति और समाज के प्रति जनता की इस उदासीनता और बेरुखी की वजह क्या है? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक साल में लाखों करोड़ों रुपए के इस खेल से फायदा किसका होता है? सामाजिक धार्मिक व्यवस्था द्वारा धर्म के नाम पर सामूहिक रूप से की जाने वाली बर्बादी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण गरीबी कम होने के बजाय हर साल लगातार बढ़ती है। गरीबी से पैदा होती है बेरोजगारी, और गरीबी और बेरोजगारी मिलकर समाज में अशिक्षा का माहौल पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या बेतहाशा रूप से बढ़ती है। ये मुख्य समस्याएं मिलकर समाज को अराजकता, अन्याय, शोषण और अपराध के घिनौने दलदल में धकेलती चली जाती है। ऐसा समाज धीरे धीरे उपेक्षा और संवेदनहीनता के उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां केवल 2 ही रास्ते बचते हैं, एक अंतहीन गुलामी या फिर क्रांति। देश की नियति बदलने के लिए आज आवश्यकता है एक क्रांति की, जो इस पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंके और एक नई व्यवस्था का सृजन करे, जहां आम आदमी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकारी मदद की भीख मांगने के बजाय स्वावलंबी बने और तिरस्कारित, अपमानित जीवन जीने के बजाय स्वाभिमान से जिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे, कोई नंगा ना रहे, पृथ्वी के संसाधनों पर सभी का बराबर हक हो, कोई नीच ना रहे, कोई ऊंचा ना बने, कोई दानी ना रहे, कोई भिखारी ना बने, कोई सती ना हो, कोई वेश्या ना बने, दहेज के लिए कोई स्त्री जलाई ना जाए, कोई स्त्री होने के कारण सताई ना जाए, गर्भ में ही वो गिराई ना जाए, जहाँ गोत्र ना हो, जाति का बंधन ना हो, धर्म की कोई दीवार ना हो, जहाँ भगवान के आलिशान घर ना हो, आम आदमी बेघर ना हो, बेबस ना हो, जहाँ किसी परमेश्वर का सवाल ना हो, जहाँ ईश्वर के दलाल ना हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार ना हो, आतंक, अन्याय और अत्याचार ना हो, किसी औरत से बलात्कार ना हो। और अक्सर जब बिहार में घूमने की बात आती है तो 2-4 स्थानों के अलावा कोई जगह हमारे जहन में नहीं। तो आज हम आपको एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से गया से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे गुरपा ले चलते हैं। गुरपा एक बौद्ध तीर्थ जो 1680 खड़ी सीढ़ियों से आसमान छूता है, जिसे देखकर मानो यह ख्याल आता है कि यह बिहार के सिर का ताज हो।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध के उत्तराधिकारी महाकश्यपा यहां अपने आखिरी वक्त में आए, जिस वक्त इस पहाड़ का नाम कुकुटा पदगिरी था। किताबों में ऐसा वर्णित है कि महाकश्यपा आज भी अपने उत्तराधिकारी मैत्रेय बुद्धा के इंतजार में इस पहाड़ पर बैठे हैं। अपने उत्तराधिकारी का इंतजार करता हुआ यह पहाड़ आपका भी इंतजार कर रहा है, अपनी अगाध खूबसूरती के साथ आपको मंत्रमुग्ध करने लगी। तो आइए और इस सुकून को महसूस करें। सत्र से पहले मायावती ने अहम टिप्पणी कर दी। साथ ही अपने तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए 5 बड़ी मांग कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने एक साथ 3-4 पोस्ट कर दिए और लिखा, वैसे कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी के अभिशप्त जीवन से मुक्ति और आंतरिक बाहरी सुरक्षा जैसे देश जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। कश्मीर में अफसरों, जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना जरूरी। अपने दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा, नए संसद परिसर में आज ध्वजारोहण और कल से वहां शुरू हो रहे विशेष सत्र की सभी सांसदों को हार्दिक बधाई। नया संसद भवन लोकतंत्र की मजबूती, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा। इसके बाद मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन की बधाई तो देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया के जरिए बसपा सुप्रीमो ने संसद के विशेष सत्र से पहले 5 बड़ी मांगों को उठाया है। उनके साथ ही जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों की शहादत को गंभीरता से लेने की बात कही। अब देखना ये है कि सरकार मायावती की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और ये संसद के विशेष सत्र में ही देखने को मिलेगा। रग रग में भाईचारा हम सबके दौड़ाएंगे, रग रग में भाईचारा हम सबके दौड़ाएंगे। अमन शांति चैन जन जन को दिलाएंगे, अजय अमन शांति चैन जन जन को दिलाएंगे। कानून के द्वारा हम राज कानून चलाएंगे। गुंडों माफियाओं को अब दूर भगा